Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 6, 3rd edition, New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of point trespass. Page number 73. Exercise consists of many parts. First of all है understanding the poem. Understanding the poem में about 5 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करके मैं इसके नोट रेडी कर चुकी हूँ, आपसे शेयर करूंगी। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है वर्किंग विद वर्ड्स। इनमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, इसके भी नोट रेडी हो चुके हैं। और नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जिसमें मैं एडजेक्टिव के बारे में आपको समझाऊंगी और इसके रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है अबाउट 3 टाइप के क्वेश्चन है, इनकी भी सोल्यूशन दूंगी। और नेक्स्ट पेज पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग और लास्ट में है कंपोजिशन। कंपोजिशन तक के तमाम तर क्वेश्चन इस वीडियो में आपको सॉल्व मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है ए, फाइंड 4 वर्ड्स इन द फर्स्ट 4 लाइंस दैट इंडिकेट दैट द वॉकर इज वरीड। 4 ऐसे अल्फाज ढूंढें फर्स्ट 4 लाइंस में जो इशारा देती हूँ कि वॉकर जो है वो परेशान है। आंसर लिखें इसका। 4 वर्ड्स दैट इंडिकेट दैट वॉकर इज वरीड: ग्लैडेड, कॉशन, वेरी, feared. Next question B है, what is the walker worried about? He is walking across a meadow swath. ब्रैकेट में लिखें a path through an area of grassland. उर्दू में इसकी मीनिंग है घास का मैदान। Which is privately owned. So he is worried that the owner will come and reprimand him. Reprimand का मतलब है डांट डबट। Next question C है, why does the walker keep on going even though he is worried? The walker keeps on going even though he is worried because everything around him appeared so beautiful. D question है, the walker meets people as he walks. What does he think they are thinking about him? Answer लिखें इसका। The walker thinks that the people he meets are having disapproving thoughts for him as he trespassed the meadow swath. What does the walker wish for? The walker wishes that it would be a great pleasure for him if he would have his own beautiful place like the meadow. F question है, the poet has used the same word to start 6 of the 14 line in the poem. In the word, what impact does it have? The poet has used the word and को आप इस तरह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें, and to start 6 of the 14 lines in the poem. The impact is that it creates the sense of an ongoing journey and the sense of connected thoughts that walking often produces. G question है, how many sentences are in the poem? Is there a different mood or feelings in the last 2 sentences? The poem contains 2 complete sentences, while the first sentence show worry and dread of the poet. The second sentence shows appreciation of the beauty around him. Appreciation का मतलब है तारीफ। H question है, what does the walker decide in the final lines of the poem? In the final lines of the poem, the walker decides not to consider others' land as his own. He feels it would be great to possess such a beautiful place. He doesn't feel alone even though he doesn't have one such place as his own. Question है, what is the rhyme scheme of this poem? The poem is written by rhyming couplets. Rhyming couplets का क्या मतलब है? ये जो पोएम है ये rhyming couplet में लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि couplet की अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होगी, the couplet is 2 lines of poetry which come next to each other, especially 2 lines that rhyming with each other and are same length. जिसका मतलब ये है, ये जो पोएम लिखी गई है ये rhyming couplet में लिखी गई है। इसकी रैमिंग स्कीम इनकी क्या बनती है, उनके एंड वाला जो वर्ड होता है वो एक जैसा होता है, उनकी रैमिंग एक जैसी होती है और उन दोनों जो सेंटेंस होते हैं उनकी लेंथ भी एक जैसी होती है। जैसे कि इस पोएम में ये एंड के 2 वर्ड जो हैं ये एक जैसे हैं, पाथ, स्वाथ। नेक्स्ट ये 2 वर्ड्स जो हैं ये आई, बाय, गोन, ऑन, फ्री, मी, से, डे, फाइन, माइन, अलोन और ऑन। यानी हर 2 लाइनों की आखिर के जो 2 वर्ड्स हैं इनकी रैमिंग जो है वो एक जैसे हैं और जो यही 2 जो सेंटेंस होते हैं इनकी लेंथ भी एक जैसी होती है। इन 2 लाइनों की आप लेंथ देखें एक जैसी है, फिर नेक्स्ट जो 2 सेंटेंस लिखे गए हैं इनकी लेंथ भी एक जैसी है। तो इस किस्म की शायरी को
रैमिंग कपलेट इस किस्म की शायरी को बोलते हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेलेबल्स इन ईच लाइन, व्हाट डू यू नोटिस? हर लाइन में आपने सेलेबल को नोट करना है। इस पोएम की हर लाइन में 10 सेलेबल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन इस सेंटेंस से ही रिलेटेड है। एंड व्हेन आई गेन्ड द रोड वेयर ऑल आर फ्री, वेयर हैड द वॉकर बीन बिफोर ही रीच्ड द रोड? आंसर लिखिए इसका। He had been trespassing on meadow swath. Next question. What happens on the road and what does the walker think? Every stranger frowns at him. He thinks that every frown was a kinder look. Third question है, why might a walker want to leave the road to walk elsewhere? Because the meadow swath was so beautiful that one cannot ignore it and want to walk over the ground. Question number 5 है, at the word given in the box of the next page. यहाँ next page पे हमें एक box दिया गया है, discuss them and look up any that you do not know the meaning of, then place them on a scale that goes down from the strongest emotion to the top. इसमें जो stronger emotion को सबसे पहले रखना है। If you have word that you think are on a similar level, put them next to each other. ये वो वर्ड्स हैं बॉक्स में जो हमें दिए गए हैं और यहाँ पे हमें इसके रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो दी गई हैं। और जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पुट देम नेक्स्ट टू ईच अदर। आंसर देखिए इसका। टेरर, पैनिक, ड्रेड, फियर, एंजाइटी, फॉरबोर्डिंग, वरी, कंसर्न, नर्वसनेस, डाउट, अनईज। तो 5 क्वेश्चन का आंसर है ये। इन इंग्लिश we use prefixes dis, non, in and un to form a negative or certain words. The prefixes all means not. With practice and wide reading you will be able to tell which prefix goes with cooler words. See if you can write the negative form of the following. Prefixes किसे कहते हैं? जैसे उर्दू में हम कहते हैं साब के लाह के। तो prefixes जब आप, जैसे ये able लिखा हुआ है, इससे पहले अगर आप किसी वर्ड का इजाफा करेंगे तो उसको prefix बोलते हैं। जैसे ये able है, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे un, तो un क्या है? prefix है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, नॉट हैप्पी, अनहैप्पी। अब हमने इसको क्या करना है, ये जो फॉलोइंग में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इसको इसके नेगेटिव फॉर्म लिखने हैं। नॉट एबल का आप लिखें अनएबल, यू एन अन, नॉट हटा के अन लिखें। नॉट अवॉइडेबल, नॉट अवॉइडेबल का आप लिखें नॉट हटा के अन लिखें, यू एन अन अवॉइडेबल। सी वर्ड है नॉट रिस्पेक्टफुल, नॉट को हटा के आपने लगाना है डिस, डी आई एस, डिस रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है नॉट विजिबल, आपने नॉट नहीं लिखना, इन लिखना है, आई एन, इनविजिबल। और नेक्स्ट वर्ड है नॉट वायलेंट, नॉट वायलेंट का आपने लिखना है नॉन वायलेंट, नॉट की जगह आपने लिखना है नॉन। नॉट यूनाइटेड, नॉट को हटा के आपने लिखना है डिसयूनाइटेड। नॉट करेक्ट की जगह आपने लिखना है, नॉट को हटा के आपने लिखना है इनकरेक्ट। यहाँ नॉट को हटा के आपने लिखना है डिसअप्रूविंग, डी आई एस, डिस, और आगे यही वाला जो वर्ड है यही लिखना है। नॉट, नॉट की जगह यहाँ पर भी आपने डी आई एस, डिसकोर्टियस। नॉट को हटा के आपने लिखना है इनकंसिडरेट। और नेक्स्ट वर्ड है नॉट कोऑपरेटिव, नॉट कोऑपरेटिव, नॉट को हटा के आपने लिखना है अनकोऑपरेटिव। और लास्ट वर्ड है नॉट डिफीटेड, नॉट डिफीटेड, नॉट को हटा के आपने लिखना है अन। अब आगे हमें क्वेश्चन कहा गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फाइंड ऑफ द सेम टाइप ऑफ एज डिस्क्राइब अबव। इसी टाइप के और वर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं जैसे ये ऊपर बयान हुए हैं। द वर्ड्स शुड बी नेगेटिव, लेकिन जो वर्ड आपने लिखना है वो नेगेटिव होना चाहिए। यू में यूज़ योर डिक्शनरी, यू कैन फाइंड द मोस्ट वर्ड। मैंने इस टाइप के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपसे शेयर करूँगी। अनवेलकम, अनअट्रैक्टिव, अनकंट्रोलेबल, अनडिपेंडेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनट्रस्टवर्दी, अनइनहेबिटेबल, अनमैनेजेबल, अनरिस्पॉन्सिव, अनडिसिप्लिन्ड और अनप्रोडक्टिव। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं। आप और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नेगेटिव में लिख सकते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन है। मेक अ लार्ज चार्ट फॉर योर क्लासरूम वॉल, एक बड़ा सा चार्ट अपनी क्लास के लिए बनाएं। मेक बॉक्सेस ऑन द चार्ट, और उस चार्ट में बॉक्सेस बनाएं विद द हेडिंग, और फिर हेडिंग दे डिस, नॉन, इन एंड अन, और उस बॉक्स में वर्ड को ऐड करें व्हेन यू कैन थिंक ऑफ एनी न्यू वंस। यानी एक चार्ट बनाएं और ऊपर आप हेडिंग दे डिस, और डिस के नीचे आप डिस से जो वर्ड्स शुरू होते हैं वो वर्ड्स लिखें। नॉन के नीचे नॉन वाले वर्ड्स लिखने, इन के नीचे
इन वाले और अन के नीचे अन वाले वर्ड लिखने हैं। कुछ के मैं एग्जांपल लिख चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैंने डिस, नॉन और इन और अन से जो वर्ड शुरू होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ राइट डाउन किए हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज एडजेक्टिव्स। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी ज़बान के बारे में सीखना। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स। एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। वी चेंज द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव के फॉर्म चेंज करते हैं। व्हेन वी वांट, जब हम चाहें, टू डिस्क्राइब द डिग्री, जब हम इसकी डिग्री को डिस्क्राइब करना चाहें। किसकी डिग्री को डिस्क्राइब करना चाहें? एडजेक्टिव के। ऑफ विच समथिंग और समवन हैज़ अ क्वालिटी। अब हम एडजेक्टिव की डिग्री को कैसे चेंज करते हैं? वी एड ई आर और मोर देन टू मेक द कंपैरेटिव के साथ जब हम ई आर का इजाफा कर लेते हैं तो हम उसको कंपैरेटिव फॉर्म बना लेते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव में हम अगर ई आर का इजाफा कर लें तो उसकी डिग्री कंपैरेटिव बन जाती है। वी यूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स। हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए कब यूज़ करते हैं? जब हम दो चीज़ों के बीच मवाजना कर रहे होते हैं, मुकाबला करा रहे होते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अमूमन अगर हम एडजेक्टिव जो स्पेलिंग दी होती है एडजेक्टिव की उसी वर्ड के साथ अगर हम ई आर का इजाफा कर लें तो वो डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे कि लॉन्ग है ना, यहाँ पे दिस इज़ लॉन्ग स्कार्फ। अब ये एडजेक्टिव है, लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, और इसी वर्ड के साथ हमने ई आर का इजाफा कर लिया तो ये कंपैरेटिव बन गया। दैट इज़ अ लॉन्ग स्कार्फ बट दिस वन इज़ लॉन्गर। अब ये दो स्कार्फ के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। एक स्कार्फ जो है वो है तो लंबा, लेकिन दूसरा वाला उससे ज़्यादा लंबा है, तो ये लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव हो गया और ये वाला लॉन्गर जो है ये कंपैरेटिव हो गया। अब आगे इस सेंटेंस में हमें बताया गया है वी एड ई एस टी। इस सेंटेंस में आपको बताया गया है कि ई आर के इजाफे से हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ बताया जा रहा है अगर हम ई एस टी का इजाफा कर लें तो तब वो डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगी। यानी एक हो गया एडजेक्टिव, नेक्स्ट हो गया कंपैरेटिव और थर्ड डिग्री इसकी बनती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए हम उस वर्ड के साथ ई एस टी का इजाफा करेंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। We use the superlative form and adjective when we are describing something that has a quality the greater or least degree। अब यहाँ हमें एग्जाम्पल भी दी गई है। These car are expensive। expensive क्या है? एडजेक्टिव है। This one is more expensive than that one। more expensive यानी यहाँ से इसकी डिग्री चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। more expensive कंपैरेटिव में आ गया। अब हमने इससे भी ज़्यादा मुकाबला करवाना है। इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव। अब ये मोस्ट एक्सपेंसिव क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ई आर और ई एस टी का इजाफा करेंगे तो तब भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनेगा, लेकिन अमूमन जो है ई आर और ई एस टी के इजाफे से ही सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बन जाता है। अब यहाँ हमें समझाने की एग्जाम्पल दी गई है। यूज़ रेगुलर एडजेक्टिव्स बिलो इन ऑरल सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। यहाँ पे हमें रेगुलर एडजेक्टिव दिए गए हैं और एग्जाम्पल भी दी गई है। रैबिट आर स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। माइस आर स्मॉलर देन रैबिट। स्मॉलर, स्मॉलर क्या है? कंपैरेटिव है। आई डू नॉट नो व्हाट द स्मॉलेस्ट मैमल इज, डू यू। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पहला हो गया स्मॉल एडजेक्टिव, स्मॉलर कंपैरेटिव बन गया। स्मॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे ध्यान दें ई आर के इजाफे से कंपैरेटिव बन गया, ई एस टी के इजाफे से क्या बन गया? सुपरलेटिव बन गया। यहाँ भी ई आर के इजाफे से कंपैरेटिव बन गया और यहाँ पे ई एस टी के इजाफे से सुपरलेटिव बन गया। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि हर बार ई एस टी या ई आर के इजाफे से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनते हैं। जैसे यहाँ पे डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट के साथ मोर डिफ़िकल्ट के इजाफे से कंपैरेटिव बन गया है। और यहाँ पे मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है चीप, चीपर, चीपेस्ट। ये हमें एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में समझाया गया है।
अब हम oral sentences अगर इनके बनाने चाहें, the elephant is big, elephant बड़ा है, but the giraffe is even bigger. The blue whale, however, is the biggest animals on earth. Big, bigger, biggest. आगे है difficult, more difficult और most difficult को अगर हम sentences में use करना चाहें तो कैसे करेंगे? Learning to ride a bicycle was difficult, but learning to drive a car was even more difficult. However, parallel parking was the most difficult part of all. Difficult adjective, more difficult comparative, most difficult क्या है? Superlative है इस sentence में. Cheap, cheaper, cheapest. Buying grocery at the local market is usually cheap, but shopping during a sale is even cheaper. The cheapest option thought might be buy in bulk. यहाँ पे cheap, cheaper, cheapest. तो ये हो गए इनके oral sentences. आप इसको oral sentences में कैसे यूज करेंगे, जैसे अभी मैंने समझाया है. Next है some adjectives are irregular. ये है regular adjectives और यहाँ पे है some adjectives are irregular. We have to learn the different form they take. Adjectives, comparative, superlative. अब यहाँ पे हमें कुछ irregular adjective के बारे में समझाया गया है. Bad, बुरा. Worse, बदतर. Worst, बदतरीन. Good, better, best. Well, better, best. Much, more, most. ये irregular adjectives हैं. Use the irregular adjective above in oral sentences. इन adjective को oral sentences में use करना है. Use 3 in written sentences. 2 और sentences को लिखना भी है. ये oral sentences हैं. ये 3 मैंने oral sentence आपके समझाने के लिए मैंने first word क्या था? Little था. She had little time to prepare for the exam, but her friend had even less time. It turned out to be the least prepared they'd ever been. Next word था bad. He performs in the first round was bad, but it got worse in the second round. In the end, it was the worst in the second round. In the end, it was the worst performance of his career. Next word के मैंने sentence बनाया है. He wasn't feeling well yesterday, and today he feel even worse. Hopefully, he'll start feeling better soon. अब मैंने इसके रिटन सेंटेंस जो आपने राइट डाउन करने हैं, ये वाले सेंटेंसेस मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखे हुए हैं, बाकी ये ऑरल सेंटेंसेस थे. नंबर 1, he had very little knowledge of the subject, but her friend and even less. It turned out to be the least informed they'd ever been. Next sentence बनाएं. His behavior in the meeting was bad, but it became worse as the discussion went on. In the end, it was the worst behavior he had ever displayed. Third और last sentence है. His health took a turn for the worse yesterday, and today he feels even worse. Hopefully he'll start experiencing better health soon. 3 number question है. Some adjectives are absolute. There is no degree to them, so they do not have comparative or superlative forms. There are not many absolute adjectives. Use following absolute adjectives in sentences of your own. यहाँ हमें कुछ words दिए गए हैं जिनके हमने sentences बनाने हैं. मैं इसके नोट बना चुकी हूँ. Dead का sentence बनाएं. Once a flower is dead, it's simply dead. There's no more or less dead. Fatal. The impact of the mistake was fatal. They are no more fatal when it results in loss of life. Next word है minor. Although it was a minor error, there's no more minor mistake. Minor ones are always small. Next sentence है unique. Her idea was truly unique. There's no way to make something more unique because it's one of a kind. Impossible. In some cases, achieving the goal is impossible, and there's no more impossible task. Last word है ideal. Her solution was ideal. It couldn't have been better. Next question. Next page, page number 77 पर D. Listening and speaking, बोलना और सुनना. इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं. फर्स्ट वाला क्वेश्चन है listen and say the words aloud.
यहाँ ये जो वर्ड्स हैं इसको सुनना है और ज़ोर से बोलना है। द वर्ड्स विद ओ हैव द सेम साउंड एंड दोज विद ओ यू। ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इसको आपने लाउडली पढ़ना है। ये ओरल एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू नॉट फिट इनटू द लिस्ट अबव। ये जो हमें मज़ीद कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनमें कौन से वो वर्ड जो ऊपर वाले इन वर्ड के साथ फिट नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। अपनी कुट से लेके बोल्ड तक तमाम वर्ड लाउडली पढ़ने हैं, तब आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से वर्ड ऊपर वाले वर्ड से जो है वो फिट नहीं हो रहे हैं। तो आपने पहले ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और कुड और शुड ये दो वर्ड जो हैं ये इसका आंसर है, कुड शुड। लिसन टू द वर्ड्स को सुने, राइट देम डाउन और फिर लिखें। व्हेन यू हैव फिनिश एंड द वर्ड्स हैव बीन चेक्ड रीड यू लिस्ट अलाउड। ये भी ओरल एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ई कंपोजिशन। कंपोजिशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और अगर मेरी ये वीडियो आपके काम आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस तरह मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सकेगी। लास्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन। रीड द पोएम अगेन। इस पोएम को अगेन पढ़ें, देन फिर इमेजिन दैट यू आर द नेरेटर ऑफ द पोएम। यू एंजॉय वॉकिंग इन द कंट्री साइड थ्रू द फील्ड एंड वुड ऑन लिटिल पाथ बट अ न्यू लॉ से। इस पोएम को अगेन पढ़ें, फिर आप इमेजिन करें कि आप जो हैं इस पोएम के नरेटर हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं वॉकिंग को। कंट्री साइड पर आप वॉकिंग को यानी आप जब चल रही हैं तो उसको एंजॉय कर रही हैं थ्रू अ फील्ड, आप खेतों से गुजरते हुए इसको एंजॉय कर रही हैं। एंड वुड ऑन लिटिल पाथ बट अ न्यू लॉ, लेकिन एक नया कानून है। से दैट यू मस्ट ओनली वॉक ऑन द रोड, लेकिन नया कानून आया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रोड पर ही वॉक करना है। राइट अ शॉर्ट पीस इन द फर्स्ट पर्सन। आपने क्या करना है कि एक शॉर्ट पीस फर्स्ट पर्सन का राइट डाउन करना है यूजिंग द पोएम एज इंस्पिरेशन, और जो पोएम से इंस्पिरेशन लेनी है आपने। इन विच यू डिस्क्राइब गोइंग ऑन अ वॉक। देन योर पीस ऑफ राइटिंग फर्स्ट बाय यूजिंग द गाइड बिलो एज अ फ्रेमवर्क ऑफ योर नोट। यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हमने पैराग्राफ राइट डाउन करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यहाँ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन योर फीलिंग अबाउट वॉकिंग इन द कंट्री साइड। सबसे पहले जब आप वॉक कर रहे हो तो फिर अपने जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट में इन योर सेकंड पैराग्राफ, जब आप दूसरा पैराग्राफ लिखें, एक्सप्लेन द न्यू लॉ, नया जो कानून नाफिज हुआ है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड डिस्क्राइब हाउ यू फील अबाउट इट, और आपने तफसील भी बतानी है कि आप जो नए कानून के मुताबिक क्या आपकी फीलिंग आ रही है वो भी आपने डिस्क्राइब करनी है। थर्ड पैराग्राफ आपने क्या करना है, इन योर थर्ड पैराग्राफ डिस्क्राइब द वॉक यू वेंट ऑन टुडे हाउ यू फेल्ट। जब आप वॉक पे गए, ऑन टुडे आज जब आप वॉक पे गए, एंड हाउ यू फेल्ट आपको कैसे महसूस हुआ। रिमेंबर टू शो योर appreciation of the countryside and your fear of being caught trespassing. In your final paragraph में क्या करना है, see whether or not the new law and today's walk will stop you from going off the main road again. तो इसका मैंने पैराग्राफ राइट डाउन किया हुआ है, आपसे शेयर करूँगी। कंपोजिशन का आंसर लिखें। As I stepped out into open countryside, a result A familiar sense of exhilaration washed over me. There's an inexplicable नाकाबिले बयान जो in treading upon. However, a dark cloud had loomed over my beloved wandering. A new law, stringent and unforgiving. The very thought of it sent shivers down my spine. Despite the weight of new law I ventured out today, my senses were alive with the beauty that surrounding me, but the ever-present fear of being caught cast a shadow over my joy. As the day waned and I returned to the main road, I contemplated the future of my walk, wondering even if it meant staying closer to the roads. The allure of the countryside was too strong to be extinguished by our legislation, and I would find a way to tread lightly upon its hidden paths once more.
इस पोइम की फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 7 वुमेन एंड क्रिकेट की फुल एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।